مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہ دنیا کا دستور ہے تو سیام اسی طریقے سے یہ دین کا بھی دستور ہے کہ جس انسان کے دماغ میں ہو کہ مرتے وقت میرا انجام کیا ہوگا، جس انسان کے دماغ میں ہو کہ قبر میں میرا انجام کیا ہوگا، جس انسان کے دماغ میں ہو کہ قیامت کے دن میرا انجام کیا ہوگا، جس انسان کے دماغ میں ہو کہ قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد مجھ کو جنت میں داخل کیا جائے گا یا جہنم میں داخل کیا جائے گا، خدا کی قسم جو قبر اور حشر اور جہنم کے انجام سے باخبر رہے گا وہ گناہ نہیں کرے گا، ہمیشہ اللہ کی عبادت وہ کرتا ہوا. محترم حضرات، ایک کہاوت کہ جو انسان اپنے انجام سے باخبر رہتا ہے وہ کامیاب رہتا ہے، اور جو اپنے انجام سے بے خبر رہتا ہے، نتیجہ سے بے خبر رہتا ہے، وہ انسان ناکام ہوتا ہے. جیسے اسکول میں یا مدرسہ میں ایگزام چل رہا ہے، پریکھا چل رہا ہے، اب جس بچے کے دماغ میں ہے کہ ہم کو امتحان میں ایگزام میں کامیاب ہونا ہے، اس کے دماغ میں اپنا رزلٹ ہے، انجام ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بچہ رات میں کھا کر سو نہیں جائے گا بلکہ وہ کتابوں کو پڑھتا ہو جائے گا. لیکن جس بچے کے دماغ میں نہ امتحان ہے، نہ ایگزام ہے، نہ پریکھا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ لاپرواہ ہے اپنے انجام سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بچہ کھا کر کے کتاب نہیں پڑھے گا بلکہ ٹانگ پھیلا کر کے وہ سوتا ہوا نظر آئے گا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ انجام اور نتیجہ کو جو اپنی نگاہوں میں رکھا وہ کامیاب ہوا، اور جو اپنے نگاہوں میں نہیں رکھا، جو اپنے دماغ میں نہیں رکھا، وہ ناکام ہوا. ہم اپنے سماج میں دیکھتے ہیں کہ جس جوان یا جس مرد کے دماغ میں ہو کہ ہم کو بہترین طریقے سے فیملی چلانا ہے، بال بچے کو پڑھانا ہے، آج پڑھائی کا دور ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ نوجوان گھر میں بیٹھا نہیں رہے، وہ ادھر ادھر آوارگی نہیں کرے گا، وہ محنت کرے گا، مزدوری کرے گا، کام کرے گا، پیسہ کمائے گا، اپنی فیملی کو کامیاب کرے گا. لیکن جس کے دماغ میں نہ ہو کہ فیملی کیا چیز ہوتی ہے، اولاد کی تعلیم کیا چیز ہوتی ہے، اپنا ٹھکانہ کیا ہے، سماج میں رہنا کیسے ہے، سماج میں ایک انسان کی عزت و وقار کیا ہوتی ہے، وہ تمام انجام سے بے خبر ہے، تو وہ انسان سماج میں کامیاب نہیں رہتا، اپنے گھر میں بھی کامیاب نہیں رہتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انجام اور رزلٹ کو اپنی نگاہ میں رکھا وہ کامیاب ہوا، اور جو اپنے انجام اور رزلٹ اور نتیجہ سے بے خبر رہا وہ ناکام ہو گیا. یہ دنیا کا دستور ہے تو سیام اسی طریقے سے یہ دین کا بھی دستور ہے کہ جس انسان کے دماغ میں ہو کہ مرتے وقت میرا انجام کیا ہوگا،
जिस इंसान के दिमाग में हो कि कब्र में मेरा अंजाम क्या होगा, जिस इंसान के दिमाग में हो कि कयामत के दिन मेरा अंजाम क्या होगा, जिस इंसान के दिमाग में हो कि कयामत के दिन हिसाब किताब के बाद मुझको जन्नत में दाखिल किया जाएगा या जहन्नम में दाखिल किया जाएगा, खुदा की कसम जो कब्र और हश्र और जहन्नम के अंजाम से बाखबर रहेगा वो गुनाह नहीं करेगा, हमेशा अल्लाह की इबादत वो करता हुआ। लेकिन जो लापरवाह है, अंजाम से बेखबर कि कब्र में क्या होगा। आज तो कुछ लोग कहते हैं अरे कब्र में कौन देखेगा, कर लो जो करना है इस जमीन के ऊपर, कब्र में कौन आएगा देखने के लिए। यार कब्र की बात तो छोड़ो, जब रूह निकालने के लिए हजरत इजराइल तुम्हारे सामने आएंगे, अगर तुम पापी हो तो कब्र का अजाब तो बहुत दूर की बात है। रूह निकलने से पहले हजरत इजराइल का जो हयूला होगा, जो उनकी शक्ल सूरत होगी, जो उनका हाथ पैर होगा, जो उनका सर होगा, जो उनकी आंखें होगी, उसका चेहरा तुम देखोगे तो वही तुम्हारे लिए एक अजाब होगा। और तुम कहते हो कि कब्र में क्या होगा। आज हम गुनाह करें कौन देखेगा, एक गांव देखेगा, एक समाज देखेगा, एक जिला देखेगा, ज्यादा से ज्यादा एक स्टेट देखेगा या एक मुल्क देख लेगा। लेकिन कयामत के दिन और कब्र में अगर हम पापी होकर के चले गए तो हमारे साथ खानदान क्या 14 खानदान का इंसान भी हमारे गुनाहों को कब्र में देखेगा। और हम कहते हैं कि कब्र में कौन देखेगा। नहीं मुसलमानों, कब्र में हर इंसान के आमाल को दिखाया जाएगा, हर इंसान के पाप को बताया जाएगा, हर इंसान की बदियों को अल्लाह के सामने इंसान को अपना हिसाब व किताब देना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अपने अंजाम का ख्याल कीजिए, अपने नतीजा का ख्याल कीजिए, अपने कब्र में जाने के बाद जो आपके साथ जो हश्र होगा उसका ख्याल कीजिए। दुनिया कमाइए दुनिया में जीने के लिए, लेकिन जिंदगी को अल्लाह के लिए मुस्तफा के लिए आप वक्फ कर दीजिए। खुदा की कसम आप इस जमीन के ऊपर भी कामयाब रहेंगे और कब्र में भी कामयाब रहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, मैं अर्ज क्या करना चाहता हूँ कि हमको नतीजा और अंजाम से बाखबर होगा कि कब्र हश्र में क्या होगा। आज हम लापरवाह होकर के झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, हम गिबत बयान करते हैं, हम दुश्मनी करते हैं, हम अपने माँ बाप को सताते हैं, हम शराब पीते हैं, हम जिना करते हैं, हम एक दूसरे के साथ दुश्मनी कर लेते हैं, जमीन को हड़प लेते हैं, एक दूसरे के माल को छीन करके खा जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर हम जुल्म ज्यादती करते हुए नजर आते हैं। कोई कमजोर है उसको दबा देते हैं, कोई ताकतवर है उसके सामने झुक जाते हैं। ये जितना पाप कर रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं? दुनिया की लज्जत के लिए कर रहे हैं। ये जितना भी आप पाप करें, चाहे आप झूठ बोले, चाहे शराब पिए, चाहे आप नमाज ना पढ़े, चाहे आप रोजा ना रखे, लेकिन मेरे अजीजों दोस्तों आप इस जमीन के ऊपर कर लेंगे, लेकिन जमीन के नीचे जब आप कब्र में जाएंगे और कयामत के दिन आप उठेंगे तो कयामत के दिन आपका क्या होगा? आप जितना भी पाप करें आप कहाँ करेंगे? इसी जमीन के ऊपर करेंगे, इसी आसमान के नीचे करेंगे। लेकिन आप कुछ भी करें इसी जमीन के ऊपर करेंगे। लेकिन इस जमीन के बारे में आप कुरान से पूछिए कि कुरान आपको क्या कहता है। कुरान कहता है कि यौमा इज़िन तु हद्दिसु अखबारहा, ए इंसान कयामत के दिन जब तुमको उठाया जाएगा, हर इंसान को उठाया जाएगा, कयामत के
दिन जमीन को भी उठाया जाएगा, जमीन को भी अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा। अब जमीन को अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा तो क्यों किया जाएगा? तो कुरान कहता है कि यौमा इज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, वो जमीन रोज़े अव्वल से लेकर के क़यामत तक जो कुछ भी इस जमीन के ऊपर हुआ था, वो जमीन अल्लाह के यहाँ अपने खबरों को ये जमीन बयान करती हुई नजर आएगी। अगर किसी ने जमीन के ऊपर झूठ बोला है तो जमीन कहेगी कि मौला फला इंसान मेरी पीठ पर रह करके इसने झूठ बोला है, फला इंसान मेरी पीठ पर रह करके इसने चुगली किया है, फला इंसान मेरी पीठ पर रह करके इसने शराब पिया है, फला इंसान मेरी पीठ पर रह करके इसने ज़िना किया है, फला इंसान मेरी पीठ पर रह करके इसने नमाजों को छोड़ा है, इसने रोज़ा को छोड़ा है, इसने ज़कात नहीं दिया है, इसने अपने माँ बाप को सताया है। मैं कहना चाहता हूँ आज आप बंद कमरे में गुनाह करें या खुले आसमान में आप पाप करें, लेकिन क़यामत के दिन ये जमीन आपकी तमाम पापों को, आपकी तमाम बुराइयों को ये जमीन क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ बयान करती हुई नजर आएगी। मेरे अजीज दोस्तों, आज जो ये जमीन पर आप बैठे हैं, ये जमीन गवाही देगी कि कौन यहाँ सुनना चाहता है, किसको भूख लगी है, कौन यहाँ से उठ के जाना चाहता है, कौन मजलिस में रहना चाहता है, किसके दिल में सुनने के बाद अच्छा लग रहा है, किसको खराब लग रहा है, किसको हक बात अच्छी लगती है, किसको हक बात कड़वी लगती है। मेरे अजीजों दोस्तों, आज हमारा हाल यही है कि हम बेधड़क और आजाद होकर के हम गुनाह करते हैं, हम पाप करते हैं और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम बंद कमरे में ज़िना कर लेंगे, कौन देखेगा, बंद कमरे में शराब पी लेंगे, कौन देखेगा, रात के अंधेरे में एक गरीब आदमी का माल चुरा लेंगे, कौन देखेगा, एक कागजात के नाम पर हम ऑफिसों में जाकर के एक गरीब आदमी की जमीन को हम कागजी तौर पर फर्जी कबला बना करके हम जमीन को हड़प लेंगे, कौन देखेगा। लेकिन मेरे अजीजों दोस्तों, आप जमीन के ऊपर बंद कमरे में गुनाह करें या बंद कमरे में शराब पिए, बंद कमरे में ज़िना करें या बंद कमरे में दुश्मनी करें, बंद कमरे में गिबत और चुगली करें, कोई ना देखे, आप सोचे कि मेरा पड़ोसी नहीं देख रहा है, मेरा दोस्त नहीं देख रहा है, मेरा रिश्तेदार नहीं देख रहा है, मेरा आस पास वाला नहीं देख रहा है, मेरे गांव वाले नहीं देख रहे हैं, लेकिन खुदा की कसम कोई देखे या ना देखे, लेकिन जिस रब ने हमको पैदा किया है, जिस खुदा ने आसमान को पैदा किया है, जिस अल्लाह ने जमीन को पैदा किया है, कोई देखे या ना देखे, लेकिन वो खुदा देख रहा है, वो रब देख रहा है। जिस दिन हमारा ईमान ये मजबूत हो गया कि कोई देखे या ना देखे, लेकिन अल्लाह देख रहा है, खुदा देख रहा है, खुदा की कसम है कि गुनाह हमसे मिट जाएगा, अल्लाह की इबादत होती है। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। दोस्तों, ये ईमान को मजबूत करना पड़ेगा कि कोई देखे या ना देखे, खुदा देख रहा है। लेकिन आज हम लापरवाह होकर के, अंजाम से बेफिक्र होकर के हम लोग गुनाह करते हैं। अल्लाह से कोई डर नहीं, अल्लाह से कोई खौफ नहीं, अल्लाह के अजाब का डर नहीं है, अल्लाह के कहो जलाल का डर नहीं है, और हम बेधड़क गुनाह पे गुनाह करते जाते हैं। आज ध्यान से सुनिएगा जो बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये आज ये तपीश की गर्मी है, सख्त गर्मी है, आपका भी बैठना दुश्वार हो रहा है, मेरा बोलना भी दुश्वार हो रहा है, उलमा इकराम का भी बैठना दुश्वार हो रहा है। ये गर्मी कौन सी गर्मी है? आपको मालूम है कि जहन्नम हर साल, हर एक साल में एक मर्तबा सांस लेती है, एक मर्तबा सांस छोड़ती है। सोचिएगा दिमाग से कि एक मर्तबा जहन्नम सांस लेती है
اور جہنم सांस एक मरतबा छोड़ती है। जब सांस लेती है जहन्नम, तो जहन्नम में क्या है? जहन्नम में आग जलाई गई है, और इतना जलाया गया है कि दुनिया की आग लाल होती है, लेकिन जहन्नम की आग जल जल करके वो काली हो चुकी है। और एक रिवायत में तो ये आया है कि जिस आग को जला करके हम लोग खाना बनाते हैं, वो आग भी जहन्नम की आग का हिस्सा है। 500 दफा जहन्नम की आग को रहमत के पानी से धोया गया, उसके बाद उस आग को दुनिया में भेजा गया ताकि लोग खाना बना करके खा सके। वो जहन्नम साल में एक मरतबा सांस लेती है और एक मरतबा सांस छोड़ती है। जब सांस लेती है तो दुनिया की तमाम गर्मियों को वो अंदर खींच लेती है, और फिर पूरी धरती पर हमारे ऊपर ठंडी आ जाती है। हम कपड़ा पहनते हैं, मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, चादर उड़ते हैं ताकि जिस्म को गर्मी हो। ये दुनिया की गर्मी वो जहन्नम खींच लेती है, वो सांस ले लेती है। लेकिन जब जहन्नम अपनी सांस को छोड़ती है, अल्लाह अकबर, फिर इस जमीन के ऊपर ठंडी नहीं रहती है, बल्कि इस जमीन के ऊपर गर्मी हो जाती है। नबी ने कहा, अगर तुम्हारे मौसम में गर्मी हो रही है, जिस कदर गर्मी पड़ रही है, जिस कदर धूप पड़ रही है, तो तुम अंदाजा लगा लेना कि हमारा किरदार कैसा है, हमारा कैरेक्टर कैसा है, हमारे नेक अमाल कैसे है, हमारे बुराई कैसे है, हमारे बद अमाल कैसे है। रमजान गुजरा लेकिन इतनी तेज धूप नहीं थी, रमजान गुजरा इतनी सख्त तेज गर्मी नहीं थी, अल्लाह की रहमत थी। लेकिन रमजान निकला, तेज धूप पड़ रही है, रमजान निकला, तेज गर्मी पड़ रही है। क्या मतलब? पता ये चल रहा है हमारे अमाल इतना खराब हो चुके हैं कि जहन्नम आग से वो भड़क रही है, उसकी सांस ये बाहर निकल रही है, उसी की वजह से आज हम इस धरती के ऊपर गर्मी का सामना करते हैं। मेरे आसियों दोस्तों, आपने क्या समझा? ये गर्मी है। और ये भी बात ध्यान से सुनिएगा, आज जो ये सूरज है, ये सूरज कहाँ है? ये सूरज चौथे आसमान में है। आखिरी बात सुनिए, ये सूरज कहाँ है? चौथे आसमान में। और सूरज का एक चेहरा है, जैसे हमारा ये चेहरा है, और ये क्या पीठ है, ऐसे ही सूरज का भी है। लेकिन चौथे आसमान में सूरज है, उस सूरज का चेहरा जमीन की तरफ नहीं है, बल्कि उस सूरज की जो पीठ है वो जमीन की तरफ है। चौथे आसमान पर ये सूरज है, लेकिन ये सूरज चौथे आसमान से अपनी पीठ की गर्मी इस धरती पर बरसा रहा है। तो आज हम बेकरार और परेशान नजर आ रहे हैं। हमसे चौथे आसमान पर सूरज है, उसकी पीठ हमारी तरफ है। लेकिन अल्लाह अल्लाह, जरा कयामत के बारे में सुनिए कि कयामत के दिन भी यह सूरज तुलू होगा, कयामत के दिन भी यह जमीन होगी, लेकिन कयामत के दिन जो सूरज होगा वो हमारे चौथे आसमान पर नहीं होगा, वो दूसरे आसमान पर नहीं होगा, वो तीसरे आसमान पर नहीं होगा, वो पहले आसमान पर यह सूरज नहीं होगा, बल्कि कयामत के दिन सवानेज़ा, यानी एक हाथ ऊपर हमारे सर से एक हाथ ऊपर ये सूरज होगा। अल्लाह अकबर, कयामत के दिन इस सूरज की पीठ नहीं होगी, बल्कि इस सूरज का चेहरा हमारी तरफ होगा। और ये जमीन आज मिट्टी की है, लेकिन कयामत के दिन इस जमीन को पीतल और तांबे की बना दी जाएगी। आज हम गर्म तालों पर खड़े नहीं हो पाते हैं, लेकिन कयामत के दिन इस जमीन को तांबे की बना दी जाएगी। अल्लाह अकबर, अंदाजा करें कि कैसे हम कयामत के दिन उठेंगे, कैसे हम कयामत के दिन हम अपने आप का हिसाब देंगे। अल्लाह अकबर, आज चौथे आसमान का सूरज हमको बर्दाश्त नहीं होना है, तो कयामत के दिन एक हाथ का वो सूरज हमको कैसे बर्दाश्त होगा? मेरे अजीजों दोस्तों, अगर कयामत की गर्मी से बचना चाहते हैं, अगर कयामत की नफ्सी नफ्सी के
रसूल से मोहब्बत कीजिए, नमाज़ें पढ़िए, रोजा रखिए, हज और ज़कात दीजिए, नेक काम कीजिए, इबादत करेंगे। अल्लाह क़यामत के दिन इबादत की वजह से आप पर रहमत अता फरमाएगा। बेशक जज़ाकल्लाह दोस्तों, मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। वही जुमला है जो अंजाम से, नतीजा से, रिजल्ट से बाखबर रहा वो कामयाब रहा, और जो अंजाम, रिजल्ट और नतीजा से बेखबर लापरवाह था वो बर्बाद हो गया, चाहे समाज में हो चाहे आखिरत के मैदान में हो। बोलने में कोई गलती होगा माँ बता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह। अस्सलामु अलैकुम व मा अलैना इल्लल बलाग। खड़े हो जाए।